the southwest monsoon continues to unleash widespread disruptions across western India, with Maharashtra and Gujarat witnessing heavy rainfall, rising rivers, flooding, and infrastructure damage, prompting authorities to remain on high alert. In Gujarat, relentless rain has battered several districts, triggering widespread flooding, inundating residential areas, and disrupting transport. Rainfall was recorded in 172 talukas over the last 24 hours, with Junagadh receiving the highest rainfall of nearly 13 inches. The India Meteorological Department has issued a red alert for districts including Surat, Navsari, Valsad, Junagadh, Gir Somnath, Tapi, Anand, Kera, Dang, Daman and Diu, while an orange alert remains in force for Ahmedabad, Vadodara, Rajkot, Baroj, Gandhinagar and other several districts. The IMD has warned of more heavy rainfall over the next few hours, even as the state administration continues disaster response operations. In Maharashtra, Raigad district remains on flood watch as heavy rains continue through the night. The Gandhari and Savitri rivers in Mahad are rising steadily, raising fears of flooding in low-lying areas. Disaster management teams, police and civic authorities have been placed on alert, while residents have been advised to stay prepared for evacuations if required. In neighbouring Ratnagiri, the Jagbudi River has crossed the warning level in Khed, prompting heightened monitoring of riverside villages. An NDRF team has been deployed in Chiploon to respond to any emergency. In Dhule, the Arunavati River is in spate after heavy rainfall in Madhya Pradesh and the Satpura Hills. Floodwaters have submerged a bridge near the Joydar River, cutting off connectivity in the area. Meanwhile, Mumbai continues to receive heavy rainfall. Visuals on your screen right now, the IMD has forecast heavy to very heavy showers with extremely heavy rainfall possible in isolated places. While suburban train services continue to operate normally, rain-related incidents have been reported across the city. Trees crashed onto vehicles in Matunga and onto the Dadar flower market, causing significant damage but no casualties. Civic officials say nearly 100 tree fall incidents have been reported over the past few days. Severe waterlogging outside the Nalasopara railway station also disrupted commuters during the morning rush. In Pune's Khed Taluka, a commercial complex boundary wall collapsed due to incessant rainfall, flooding several shops. Fortunately, no injuries were reported. With the IMD forecast, more heavy rainfall over the next coming days, authorities across Maharashtra and Gujarat remain on high alert as rivers continue to swell and flood risk persists. इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई से सटे वसई इलाके में और इस वक्त नज़ारा आप देख लिए कि घुटनों तक पानी जो है वो सड़कों पर भर चुका है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था और ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे का नज़ारा है कि किस तरह से गाड़ियां देखिए रेंगते हुए जो है वो मुंबई से बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे। देखिए कई सारे होटल जो हैं आसपास के वो डूब चुके हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको चारों तरफ से पानी पानी दिखाई देगा और आसमान में काले बादल। ये देखिए किस तरीके से मुंबई अहमदाबाद हाईवे का नज़ारा देख लीजिए, किस तरीके से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। तो निचला इलाका किस तरीके से पूरी तरीके से डूब चुका है, गाड़ियां किस तरह से रेंगते हुए जा रही है और ये साफ तौर पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। तो इसी का नतीजा है कि कई निचले इलाके इस वक्त मुंबई से सटे वसई विरार शहर के इस वक्त इसी तरह से आपको नज़ारा दिखाई देगा। कुल मिलाकर कहा जाए कि आफत की बरसात आज न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के जितने ज़िले हैं पालघर और थाने, वहाँ पर आपको कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें देखने को मिलेगी, जहाँ पर जितने कई निचले इलाके हैं जहाँ पर इसी तरीके का आपको वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो देखने को मिलेगी। मुंबई में आज आफत की बरसात हो रही है। न सिर्फ मुंबई बल्कि पालघर, थाने और रायगढ़ जैसे कई इलाकों में आज रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये देखिए इस वक्त हम मौजूद है मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर, जहाँ पर आप देखिए किस तरह से बरसात जो पिछले कुछ घंटों से लगातार तेज़ मूसलाधार हो रही है, जिसकी वजह से आप इस वक्त ट्रैफिक का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से कई लंबे समय तक जो है जाम लगा हुआ है और कई निचले इलाके इस वक्त डूबते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर मुंबई से करीब नालासोपारा वसई विरार शहर में कई ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। इस ओर देखें तो कई जो निचले इलाके वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं और घंटों तक लंबा जो जाम है वो लगते हुए दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए कि रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया था और यही नतीजा है कि इस वक्त
मुंबई और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर इसी तरह से तेज़ मूसलाधार बरसात हो रही है। अगर इसी तरह से तेज़ मूसलाधार और बरसात हुई तो आने वाले कुछ घंटे मुंबई और उसके आसपास जितने भी लोग हैं जो जिलों में रहते हैं उनके लिए बेहद भारी होने वाला है। 4 दिन से थाने शहर में मूसलाधार बारिश है और आज बारिश सबसे ज्यादा है। आज थाने में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया था, जिसके बाद यहाँ पर सुबह से लगातार बारिश है। लगातार बारिश के चलते थाने के खारेगांव इलाके में देख सकते हैं कि बड़ा पेड़ यहाँ पर धराशायी हो गया है। इस हादसे में बाइक पर जा रहे 2 व्यक्ति को वहाँ पर चोटें आई है गंभीर स्वरूप की और उन्हें फिलहाल थाने के कलवा हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट किया गया है। देख सकते हैं कि थाने महानगर पालिका के ये कर्मचारी है, लगातार पेड़ को काटकर इसको साइड करके रास्ता खुला करने का प्रयास यहाँ पर लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 48 घंटे में करीब 50 से भी ज्यादा पेड़ यहाँ पर थाने शहर में गिर चुके हैं और करीब 48 बड़े पेड़ की टहनियां भी वहाँ पर गिर चुकी है। एहतियात के तौर पर थाने महानगर पालिका ने अब सर्वेक्षण शुरू कर दिया है कि जहाँ पर खतरनाक पेड़ की जो टहनियां या पेड़ है उन्हें भी काट कर वहाँ पर साइड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ा पेड़ यहाँ पर गिर चुका है। लगातार बारिश के चलते इसकी चपेट में 2 व्यक्ति वहाँ पर आ गए, लेकिन एक बात अच्छी रही कि उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई है, लेकिन एक का पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है और एक के हाथ पर गंभीर चोटें वहाँ पर आई हुई है।